The Emperor's New Clothes. Many years ago, there lived an emperor who cared so much for beautiful clothes that he spent all his money on them. He spent his time riding through the streets so that everybody could see his fine clothes. One day, there came to the city two rogues who pretended to be weavers. We know how to weave the most wonderful cloth in the world. But they said that the cloth could not be seen by anyone who was stupid. When the emperor heard about this special cloth, he wanted to meet these weavers. I must have some clothes made from this cloth. When I wear them, I shall find out which people in my empire are stupid. I shall be able to tell the clever people from the dunces. Those weavers must be brought to me at once. Here, take this sum of money, but you must work without delay. The rogues immediately put up great looms and acted as if they were working very hard. They asked the emperor to give them money for the best silks and the brightest gold thread. But they took all this money and kept it for themselves. I can hear the rattling of the looms. I must see my wonderful clothes. He decided to send someone to find how the weavers were getting on. But he remembered that no one who was stupid could see the cloth. So the emperor decided to send his chief minister. I will send my faithful old chief minister to the weavers. He's a very clever man, and no one is more worthy of his office than he. So the good old chief minister went into the room where the two rogues sat, working at the empty looms. He stared and opened his eyes wide. Mercy on us. I can't see a thing. Step a little nearer. Is not this a beautiful pattern? And the colors, are they not wonderful? And they pointed to the empty looms. The poor old minister put on his spectacles and bent over the looms. But he could see nothing, for there was nothing to see. Oh dear. Is it possible that I am too stupid to see the cloth? Certainly, no one must know it. Well, sir, what do you think of it? Oh, it is charming and beautiful. The colors are gorgeous, and the pattern is just wonderful. Soon everyone in the city was talking about the magnificent cloth that the two weavers were making. The emperor thought that he would like to see the beautiful cloth while it was still upon the looms. What is this? I see nothing at all. Am I not fit to be an emperor? Am I a dunce? If that were known, I will be asked to give up my kingdom. Then he said, Yes, it is very pretty. I could not be better pleased. He smiled and nodded his head and stared at the empty looms. His courtiers, too, looked and looked, but saw no more than the others. Yet they all gave admiring looks. It is wonderful. They asked the emperor to wear a suit made from this cloth in a great procession that was soon to take place. The emperor gave each of the rogues a royal badge to wear and called them the Imperial Court Weavers. The day of the procession is getting nearer. We have to work very hard. We have to stay up the whole night before. Through the shining windows, the people could see them hard at work. They sewed strong stitches without any thread. And at last they said, The clothes are ready! I'm so excited. Let me put on my new suit. The emperor took off his clothes, and the rogues pretended to put on him each new garment that they had stitched. They wrapped him about, they buttoned and they tied. How well His Majesty looks in his new suit. What a becoming style. What beautiful colors. The emperor turned round and round in front of the mirror and looked and nodded his head. The two men who were to carry the train of the emperor's new gown stooped down to the floor as if picking up something, and then they held their hands high in the air and moved forward. How handsome the emperor's clothes are!
What a perfect fit! What marvelous colors! But he has nothing on. Hush, hush. But the people began to whisper to one another what the child had said. He has nothing on. A child says he has nothing on. He has nothing on. The emperor heard what they said, and he shivered, for he knew that their words were true. But it would never do to stop the procession, and so he held himself stiffer than ever. And behind him his officers carried the invisible train. चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे द एम्पेयर्स न्यू क्लॉथ्स। एक राजा हुआ करता था जिसको नए नए कपड़े बनाना और इसके ऊपर ही वो बहुत खर्चा करता था और कपड़े लोगों को दिखाता था, देखो मैंने कैसे कपड़े बनाए करके। तो ऐसे वो राजा घुमा करता था गलियों से अपने। तो वहाँ पे दो ऐसे जो लोग कपड़े बनाने वाले लोग थे, ये उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, वो फंसाना चाहते थे। उन्होंने ऐसे अफवाह फैला दी कि वो ऐसे कपड़े बना सकते हैं कि जो स्टूपिड मतलब पागल लोगों को दिखेंगे नहीं, लेकिन जो बहुत क्लेवर होंगे उनके वो दिखेंगे। तो ये स्पेशल क्लॉथ होंगे। ये धीरे धीरे राजा को बात पता चल गई और उसने सोचा कि मैं भी इनसे कपड़े बनवाऊंगा ताकि मुझे मेरा जो कंट्री है, जो किंगडम है, उसमें जितने भी पागल होंगे और वो मुझे आसानी से पकड़े जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे कपड़े ऐसे ही हो। तो जल्दी से जल्दी उनको बुलाया जाए कर वो आ गए और उन्होंने फिर कपड़ा बुनना शुरू कर दिया। कपड़े बुनते समय जब वो आवाज़ आ रही थी कि जैसे बहुत ही उनका काम है ना ज़ोरों शोरों से चल रहा था। फिर उन्होंने थोड़ा पैसे की मांग किंग से की कि हमको थोड़ा पैसा दे दो ताकि हम नए थ्रेड ला सके, धागे ला सके। किंग ने उनको पैसा दे दिया और बोल दिया कि हाँ भाई जल्दी जल्दी करो, मुझे मेरे नया ड्रेस सूट की बहुत ये है ज़रूरत है। ऐसे करके फिर किंग ने क्या किया, उसका चीफ मिनिस्टर जो था वो उसे लग रहा था कि बहुत क्लेवर है, हॉनेस्ट है, और इसको देखने के लिए उसको भेज दिया कि जाओ मेरे कपड़े कहाँ तक बुन के तैयार हो गए हैं, ये जाके देख के आओ करके। तो चीफ मिनिस्टर जो था वो चीफ मिनिस्टर अब जो कपड़े बुनने वाले लोग हैं वहाँ पे कपड़ा देखने के लिए वो गया। उसने देखा कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन थ्रेड का तो अता पता लापता है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उसे। और वो मन के अंदर सोच रहा था, हे भगवान, इन्होंने तो बोला था कि ये कपड़े उसी को दिखेंगे जो बहुत क्लेवर होगा, लेकिन क्या मैं भी उनके जैसे हूँ? और फिर उन्होंने उसको बताना शुरू कर दिया। जो कपड़े बुनने वाले थे उन्होंने बोला कि देखिए कितने अच्छा डिज़ाइन है, कितना अच्छा कलर है, देख लो। पर चीफ मिनिस्टर को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कहीं मैं पागल हूँ, ये इनको पता ना चल जाए, इसलिए वो जोर जोर से उनकी तारीफ करने लगा। ओहो कितने अच्छे कपड़े, ओफो क्या कलर है, कितना अच्छा, सब चीज़ें बहुत अच्छी है, पैटर्न बहुत अच्छा है, ये तो राजा को बहुत पसंद आ जाएगा, बहुत अच्छा है। ऐसे तारीफ करने लगा। धीरे धीरे लोग जो थे, लोगों को भी जैसे आवाज़ आती थी, वो लोग बोलते थे कि कपड़े बुनने वाले लोग का जादू ही कुछ तो कपड़ा है ऐसे। और फिर किंग को भी ये बातें पता चल गई। तो किंग के मन में आ रहा था कि मैं भी जाके देखूं, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, कहीं मैं भी तो स्टूपिड नहीं हूं ना। अगर ये किसी को बात पता चल गई कि किंग स्टूपिड है तो मेरा किंग जो है वो किंग पद मुझे छोड़ देना चाहिए। ओ नो। और उसने वो कपड़ा वहाँ पे था भी नहीं, फिर भी उसने जो से बोलना शुरू कर दिया कि वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बना रहे हो। पर वहाँ पे उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके साथ में जो भी लोग वहाँ पे आए थे सब लोग हैरानी से उधर देख रहे थे, लेकिन किसी को भी बोलने की हिम्मत हो नहीं रहा थी। सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है। तो किंग भी सोच रहा था सबको दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कुछ दिखावट तो नहीं कर सकता। फिर किंग ने क्या किया और उनको बोल दिया कि बहुत अच्छे से आप बना रहे हैं, आपको जो भी चाहिए ले लो।
तो उसके साथ जो भी लोग आए थे वो उन्होंने बोला कि अब एक प्रोग्राम आ रहा है प्रोसेशन का, उसके लिए हमको बहुत मेहनत कमी करनी पड़ेगी। तो वो बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करने लगे। तो लोग उनकी मेहनत को भी देख रहे थे। जल्दी ही कपड़े बुन के उनका सूट रेडी हो गया, किंग के पास आ गए। किंग ने देखा, किंग को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो बोला कि मैं बहुत एक्साइट हूँ। उसने तुरंत आईने के सामने खड़ा होके अपने कपड़े जो थे वो निकलवाए और ये नया वाला सूट पहनने के लिए वो वहाँ पर रेडी हो गया। तो जो 2 कपड़े बुनने वाले लोग थे वो ऐसे उसको एक्टिंग करके पहना रहे थे कि जैसे वो सूट जो है उसके बटन लगा रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने प्रिटेंड कर दिया और बोल दिया कि बहुत अच्छा कपड़ा दिख रहा है, बहुत अच्छा सूट दिख रहा है। किंग आईने के सामने जाके देख रहा है, उसे कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके पीछे जो उसका जो पोशाक है, उसका पोशाक का जो बाकी बचा हुआ कपड़ा जो वो पहन मतलब लेके जाते हैं वो वाला वो उन्होंने पकड़ के, वो इनविजिबल है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी जा रहे और लोग जोर जोर से तारीफ करने लगे। बाप रे, राजा ने कितना अच्छा कपड़ा पहना है। तभी एक बच्चा बोला, कुछ भी तो नहीं पहना है। पापा उसके बोले, ऐसे नहीं बोला करते बेटा। लेकिन लोग तो बोल ही रहे थे कि लड़का जो बोल रहा है वो तो सच ही है, कुछ भी तो नहीं है। फिर भी हम लोगों को बोलना पड़ रहा है कि कपड़ा बहुत अच्छा है, सूट बहुत अच्छा है। किंग भी अपने मन के अंदर ही डर रहा था। उसे भी पता चल गया था कि लोग जो बोल रहे हैं वो कुछ गलत नहीं है, बराबर बोल रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही। पीछे के 2 आदमी वो उसका जो बचा हुआ कपड़ा है वो लेके जा रहे थे, पर क्या कर सकते, किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी।